ملکی خوشحالی کا مشن وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ اہم دورے پر دبئی روانہ۔ دورہ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ یو اے ای کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم IMF سربراہ سے بھی ملیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان متفقہ بیل آؤٹ پیکج کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کے دبئی میں IMF سے مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق 5 نکاتی فارمولے پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ پاکستانیوں پر 231 ارب کے نئے ٹیکسز کے معاہدے کا امکان۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھانے کی فی الحال کوئی شرط شامل نہیں۔ معاہدے کی تمام شقوں کو دستخطوں سے پہلے نشر کرنا لازمی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کا بحران سے شہری پریشان۔ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کھانا بنانے کے لیے شہری مہنگے سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ گیس پریشر سے تنگ شہری قیمتیں بڑھنے سے پریشان۔ 500 کے بجائے 10,000 کا بل۔ گیس کے اضافی بلز نے شہریوں کی کمر توڑ دی۔ گیس آتی نہیں، بل ہزاروں میں۔ شہر شہر صارفین پھٹ پڑے۔ اتنی پریشانی ہے کیا نام 4-5 مہینے ہو گئے گیس نہیں آ رہے۔ پبلک کو بڑی پریشانی ہے۔ اگر چولہا نہیں جلے گا تو روٹی نہیں پکے گی۔ حکومت سے التماس ہے گیس کا پریشر کھولا جائے، گیس پورا دیا جائے عوام کو۔ صبح 5 بجے 6 بجے اٹھ کے ناشتہ بنا رہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ گیس کی اتنی کمی ہے ملک کے اندر۔ حیدرآباد آباد میں کہیں گیس ہی نہیں ہے۔ گیس آتا ہے تو سلو آتا ہے، نہ کھانا پک رہا ہے نہ ناشتہ ہے۔ ناشتہ بھی ہم بازار سے لینے آئے ہیں۔ اٹھاون گھنٹوں کی بندش کے بعد کراچی سمیت سندھ میں CNG اسٹیشنز کھل گئے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ CNG اسٹیشنز جمعرات کی شب 10 بجے 34 گھنٹوں کے لیے بند کیے گئے تھے۔ گیس پریشر میں کمی کے باعث اسٹیشنز کی بندش دورانیے میں اضافہ کیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سود ایکشن اور بھاری جرمانوں کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ لاہور میں ختم کی گئی عارضی تجاوزات دوبارہ قائم۔ ٹریفک مسائل پھر سے سر اٹھانے لگے۔ بازاروں میں راہگیروں کا چلنا بھی محال۔ انسداد تجاوزات کیمپ ویران۔ چیک اینڈ بیلنس کا غیر مؤثر نظام۔ گلبرگ ٹاؤن شپ ہال روڈ سمیت کئی علاقوں میں تجاوزات مافیا کا راج۔ سابق حکومتوں میں سرکاری دوروں کی آڑ میں ہزاروں لوگ بیرون ملک بھیجنے کا انکشاف۔ ایک سابق وزیر نے خود بھی برطانوی شہریت کی درخواست دی تھی۔ اہم وزارتوں کی جانب سے ویزوں کے لیے مختلف سفارتخانوں کو 3000 خطوط لکھے گئے۔ کئی افراد بطور خدمتگار سعودی عرب گئے۔ رقوم بھی بٹوری گئی۔ خبر روزنامہ 92 نیوز کے آج کے شمارے میں شامل۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر ہٹاؤ مہم میں تیزی آ گئی۔ مسلم کانفرنس بھی نون لیگ کے باقی اراکین سے مل گئی۔ مسلم کانفرنس کے رہنما ملک نواز کی سردار سکندر حیات سے ملاقات۔ فاروق حیدر ہٹاؤ تحریک میں سکندر حیات کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے بدلتے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکا کے بھارتی بربریت اور نریندر مودی کے خلاف نعرے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔
वस्ती लंदन में स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान सोसाइटीज की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद CPAC कश्मीर और अफगानिस्तान के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की भरपूर शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की ब्रेडफोर्ड में रुकने बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत जल्द ही बरतानवी शहरियों को एंट्री पर वीजा सर्विस मिलेगी, फीस भी कम की जाएगी। नाज शाह कहती हैं इमरान खान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीबात और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जर्मन शहर बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में मुजाहिरे, भारत के खिलाफ नारेबाजी। रियाज में भी कश्मीरियों से हमदर्दी की तकरीब का एहतमाम किया गया। वेम्बले की जामिया मस्जिद के इमाम की बरतरफी का मामला, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फरीकैन ने मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल न किया। अब्दुस सत्तार के हामी जुमे की नमाज के लिए आए तो लड़ाई हो गई। पुलिस की दोनों ग्रुपों को पुरअमन रहने की हिदायत। लंदन में वालदैन के एहतराम के मौजू पर रूहानी महफिल का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। तकरीब की सदारत सैयद हाशिम अल गिलानी सजादा नशीन बगदाद शरीफ ने की। नात ख्वां हजरात ने गुलहाय अकीदत पेश करके शुरका के कुलूब को मुनव्वर किया। पाक बहरिया की कसीरुल कौमी मश्क अमन 2019 जारी। अमीर अल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बास से शरीक ममालिक के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर अमन मश्क 2019 पर तबादला ख्याल। सरबराहान ने पाक बहरिया की अमन मश्क 2019 के इनेकाद को सराहा। मौसम ठंडा ठार, शहरी फिर भीगने को हो जाएं तैयार। मंगल से बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। लाहौर में सर्द हवाओं के साथ आज मतला जुज़वी अबर आलूद है। कराची में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान में कल से बादल बरसने की नवीद। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में बला की सर्दी। हुंजा की अताबाद और बोरियत झील का पानी जम गया। बर्फबारी के शौकीन मंचले बर्फ से ढकी झील देखने मुश्किल रास्तों के बावजूद पहुंच गए। मुंज में झील पर चलकर सयाह खुशी से निहाल। सेल्फीज का शौक भी खूब पूरा किया। शोहरा आफाक मारूफ मुसव्विर और खत्तात सादकैन को बिछड़े 32 बरस बीत गए। सादकैन ने पूरी दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपने फ़न की बदौलत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी हासिल किए। और छोटे जहाजों के बड़े करतब। अबू धाबी में सालाना मुकाबले में पायलट्स की महारत ने देखने वालों को गर्विदा बना दिया। जापानी पायलट योशिडी मराया कमाल महारत का मुजाहरा करके ट्रॉफी ले उड़े। चेक रिपब्लिक के मार्टिन सोनका का दूसरा, अमेरिका के माइकल गोलियान का तीसरा नंबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएंगे इस बुलेटिन में कि वजीर आजम दौरा दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं और IMF से होने वाली डील के हवाले से जो मुज़ाकरा जारी हैं उनका जिक्र भी होगा इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर दुबई रवाना हो गए हैं, जहां उनकी UAE की क़यादत से मुलाकात होगी। वजीर आजम और IMF सरबराह की मुलाकात भी होने जा रही है। अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना हो गए हैं और आपको बताएं कि इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती। बताइएगा, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर दुबई मौजूद हैं और आज IMF के सरबराह से मुलाकात भी होगी। किन शराइत पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? जी, आज IMF के साथ फैसला कुन दिन कहा जा सकता है कि वो माहिदा जो होने जा रहा था आज उसकी तकरीबन हतमी शक्ल आ जाएगी सामने, लेकिन उसका ऐलान शायद 2-4 रोज में या 10 रोज में किया जाए। इस माहिदे वज़ीर आज़म भी अगर उनसे मुलाकात करेंगे IMF की MD से, तो उनके साथ मुलाकात में वो उन शराइत पर भी बहस करेंगे कि जो शराइत अभी फिलहाल पाकिस्तान को मंजूर नहीं। IMF का जो फंड है, एक्सटेंडेड फंड, इजाफी फंड का मुआहदा, वो उसके तहत अब पाकिस्तान जो है शराइत को एक हद तक मानने के लिए तैयार है। वो ये है कि 0.6% GDP का जो है वो मजीद नए इजाफी टैक्स लगाने के लिए तैयार है। लेकिन IMF से वज़ीर आज़म भी और असद उमर वज़ीर ख़जाना भी ये कहेंगे कि जो बाकी 4 महीने हैं, 5 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगले साल 19-20 के बजट से ये टैक्स लगाए जाएंगे। और इसके साथ 5 रुकनी माहिदा है। एक तो ये टैक्सों का माहिदा है, दूसरा ये कि जो एडजुडिकेशन है, जो मुकदमात चलते हैं टैक्स के, उनका स्ट्रक्चर, डिटेक्शन का स्ट्रक्चर, एवेल्युएशन का स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑडिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, इकराम के साथ रहिएगा। उमर जट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। उमर, कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान रवाना हो गए हैं एक रोज़ा दौरे के लिए। ये कहिएगा उनके साथ कौन कौन मौजूद है? उनके हमरा भी कोई गया? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वफ्द जो है वो भी रवाना हुआ है। उसमें जो वज़ीर मुशीर हैं वज़ीर आज़म के और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, वो भी साथ है, जुल्फी बुखारी भी साथ है और अब्दुल रज़ाक दाऊद और वज़ीर बराए बहरी अमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर अपने दौरे के दौरान 7वीं आलमी हुकूमती इजलास से खिताब करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर रोशनी भी डालेंगे। इसके साथ ही वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और अली ज़ैदी और मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी जो है वो भी वफूद की सतह पर जो होने वाली मुलाकातें हैं उनमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे और उसके साथ ही जो खिताब उन्होंने आज करना शामिल है, जिसमें वो हुकूमती तरजीहात और हुकूमत का विजन है, उस पर गुफ्तगू करेंगे उस समिट के साथ। उसमें जो उनका आलमी मुकर्रीरीन में उनका नाम है, वहाँ पर उन्होंने भी खिताब करना है। तो बड़ी अहमियत का हामिल ये समझा जा रहा है खिताब, क्योंकि सरमायाकारी पर हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से सरमायाकारों को बुलाया जा रहा है, कारोबारी अफराद को। अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इकराम होती, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जिक्र करेंगे अवामी मसाइल का। कीमतें हैं बेशुमार, गैस के बिल कर रहे हैं बेकरार। गैस आती नहीं, हजारों के बिल जरूर आ जाते हैं। कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। लोड शेडिंग के बायस खाना पकाना भी दुश्वार हो गया है। CNG स्टेशन की बार बार बंदिश से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मसाइल का शिकार है। कराची में CNG स्टेशन गुज़श्ता 58 घंटे के बाद खुले तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध भर में CNG स्टेशन बंद है, गैस नहीं आ रही, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में गैस बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू सार्फिन गैस की लोड शेडिंग से शदीद परेशान। CNG स्टेशन को भी 58 घंटे गैस की फराहमी बंद रही।
गैस बहरान के बायस खवातीन को शदीद परेशानी का सामना है। खाना पकाना दर्द सर बन गया। मर्दों को खाना भी होटलों से लाना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं गैस आए ना आए लेकिन बिल बाकायदगी से भेजे जा रहे हैं। हर चीज़ में मुश्किल है, जो बुनियादी चीज़ें वही पूरी नहीं है, ना बिजली पूरी है, ना गैस पूरी है, ना पानी आ रहा है। गैस की तो 2 महीने से बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि ना दिन का खाना पका सकता हूँ ना रात का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है। हुकूमत से बोलना चाहेंगे मेहरबानी करें, गैस बिजली पानी देते। सीएनजी स्टेशन 58 घंटे बाद खुले तो गाड़ियों की लाइनें लग गईं। बहुत ही मुश्किलात है सीएनजी के लिए, लोग बहुत परेशान हैं। यही दरख्वास्त करेंगे इमरान साहब से कि ये सीएनजी वाला मसला जो है हल कर दें। सिंध में गैस बहरान बेकाबू होता जा रहा है। शहरियों का हुकूमत से कहना है इनको बुनियादी सहूलियात से महरूम ना किया जाए। गैस प्रेशर में कमी और इजाफे बिल शहरियों की जिंदगी अजाब बना रहा है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज़, कराची। और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की सूरत हाल भी कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहर में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, साथ ही इजाफी बिल्स ने लोगों को परेशान कर दिया है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास। हैदराबाद में गैस के कम प्रेशर से सार्फिन तंग तो थे ही, अब बढ़ती कीमतों ने भी परेशानी में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से गैस के नरखों में इजाफे के बाद हैदराबाद के शहरियों को भी इजाफे बिल मिलना शुरू हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई में इजाफा कर दिया गया है, ऐसे में गैस के इजाफे बिल उनके लिए नई परेशानी का बायस बन गए हैं। बिल भी इतने भेज रहे, दुनिया भर के बिल भेज रहे, कहाँ से गरीब आदमी बिल भेजेगा। हुकूमत से इल्तिमास है गैस का प्रेशर खोला जाए, गैस पूरा दिया जाए आवाम को। सुबह 5-5 बजे 6 बजे उठ के नाश्ता बना रहे, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। गैस की इतनी कमी है मुल्क के अंदर। हैदराबाद में कहीं गैस ही नहीं है, गैस आता है तो सिलो आता है, ना खाना पक रहा है ना नाश्ता है, नाश्ता भी हम बाजार से लेने आए हैं। दूसरी तरफ गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गैस के नर्ख कम करे और गैस की बिला तातुल फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। कराची सखर समेत अंदरूने सिंध में गैस नहीं आ रही, मगर शहरे इक्तदार वालों को गैस तो मिल रही है, मगर बहुत महंगी मिल रही है। चंद सौ रुपए का बिल हजारों में आने पर शहरियों की चीखें निकल गई हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। कभी लोड शेडिंग, कभी कीमतें ज्यादा और अब बिलों में बेपनाह इजाफा। गैस ने सार्फिन को तड़पा रखा है। हर चीज महंगी होने से शहरी पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर गैस की कीमतों ने निकाल दी। हुकूमत रिलीफ तो क्या देती, गैस की कीमतों में 140% इजाफा करके सारिफीन की जेबों पर 94 अरब रुपए का बड़ा बोझ डाल दिया। शहरी कहते हैं इनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। गैस के बिल में भी इजाफा आ गया है, अभी भी हमारा बिल 3000 रुपए से ऊपर आ गया है, तो उनको ख्याल करना चाहिए। इधर पहले जो है बिल 700-800 आता था, अभी 1500, 2000, 2500, 3000 लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। हुकूमत को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। 500 के बजाय 10,000 बिल। गैस के इजाफी बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ दी। गैस का 140% इजाफा हुआ, ये सरासर नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। एक बंदा है, मेरी 18,000 रुपये तनख्वाह है, तो मैं बेकरी पे काम करता हूँ, ठीक है। मेरे घर का ये बिल मेरे पास मौजूद है, 35,000 रुपये आया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अपने बच्चों की फीसें क्या दूंगा, या बिल भरूंगा, या अपने घर में राशन लेके जाऊंगा। काम काज के हिसाब से जो है तकरीबन 60 से 65 आता है, लेकिन अब 1,20,25 के लगभग आ रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई, हमारे बस से ही बाहर हो गया है काम। जो हमें तो ये होटल भी बंद करना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस की कीमतों में कमी की जाए और इजाफी बिल वापस लिए जाएं। 92 न्यूज़ यूके में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
اور خبر یہ ہے کہ مظلوم کشمیریوں پر مظالم کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بھارتی فوج اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ہونے والے مظاہرے نے مقبوضہ وادی میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی اور ظلم و ستم کی داستان کو بیان کیا۔ مظاہرے میں امریکہ کے مختلف ریاستوں میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا تھا کہ بھارت مظالم کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ اب دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ It's a movement, a democratic, indigenous movement in occupied Kashmir. So we call upon President Trump and everybody else and all those who believe in human rights, who believe in social justice, who believe in human dignity, who believe in the right of self-determination, to come forward and support the people of Kashmir to get the right of self-determination. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جانب سے سعودی عرب میں کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی برسی کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کر کے مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا اور کشمیر میں جاری ظلم و جبر کی مذمت کی۔ تفصیلات ریاض سے عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی تقریب کا انعقاد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جانب سے کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مقبول بٹ شہید خود مختار کشمیر کے علم بردار تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور بھارتی ظلم و ستم کو بے نقاب کرتے رہے۔ JKLF ریاض کے صدر عامر چشتی کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیر ایشو پر ایک فریق ہے، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدے کشمیر عوام سے کیے ان کو پورا کیا جائے۔ مقبول بٹ شہید کی جو شہادت تھی وہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں تھی، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں تھی، کسی ایک خاص جو ہے نا وہ علاقے کے لیے نہیں تھی۔ مقبول بٹ شہید کی جو شہادت تھی وہ پوری قوم کے لیے تھی، اور یہی ایک فلسفہ ہے جو لبریشن فرنٹ آج بھی لے کر چل رہا ہے۔ اسی طرح سے جو اس پار بھی دیکھ لیں، اس پار بھی دیکھ لیں کہ آپ وہاں پر جو یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ آئے دن انڈین فورسز کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی راجہ محمد حنیف کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ مقبول بٹ شہید کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتی ہے اور اب حریت رہنما یاسین ملک کی سربراہی میں کشمیر کی آزادی کے لیے کوشاں ہے۔ یہاں آزاد کشمیر جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کو ہم ایک پلڑے میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہاں کم از کم ایک حکومتی ڈھانچہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا سیٹ اپ میں وزیر اعظم اور صدر ہیں۔ بات یہاں صرف اختیارات کی ہے کہ اگر ان کو اختیارات دے دیے جائیں، اور ہمارا تو ان سے کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، وہاں کی جو صورت حال ہے وہاں تو ایک سیٹ اپ 53 میں وزیر اعظم وہاں بھی تھا، اس کو اتار کے وہاں تو مکمل طور پہ جو ہے ہندوستان نے کنٹرول کر رکھا، اور وہاں تو اس نے ظلم و جبر کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے۔ اور دیکھیں نا وہاں شاتیں ہو رہی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پلڑے میں تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ برق اب یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ بنا تھا نا، اگر اس کو بیس کیمپ کی شکل دی جائے تو مسئلہ کشمیر سے چھٹکارا لیا جا سکتا، اور یہ جو پار ظلم و جبر ہے نا اس کا حل صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو ریکگنائز کریں۔ بھارت نے مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو جد و جہد آزادی میں ان کے بھرپور کردار کی پاداش میں نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی، جبکہ ان کی میت کو جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے جرمن دارالحکومت برلن میں فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مقامی باشندوں میں پمفلٹس تقسیم کر کے بھارتی مظالم سے آگاہی کی مہم چلائی۔ تفصیلات متی اللہ کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے برلن میں فرینڈز آف کشمیر نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا پاکستانی ہر میدان میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوامی تحریک برلن کے رہنما خضر حیات تارڑ نے کہا بھارت عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا کر کشمیری عوام کی نسل کشی کر رہا ہے، پیلٹ گنز کے ذریعے معصوم بچوں، بچیوں اور بزرگوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے۔ منہاج القرآن کے صدر صدیق اکبر نے کہا عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کشمیریوں کی یکجہتی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے جتنی بھی سردی ہو پھر بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے یکجہتی کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ کشمیری بہن بھائی جو کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ کہیں ادھر پہاڑوں یا جنگلوں یا وادیوں میں اٹک کر رہ گئی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی آواز کو ہم بہن بھائی یہاں اٹھاتے ہیں، یہاں کے
दारुल हुकूमत में हम खड़े हुए हैं और उनकी ये आवाज़ जो है वो यहाँ के ईवान बाला तक हम पहुँचाते हैं और वहाँ हम पहुँचाते रहे हैं, पहले भी पहुँचाते हैं, अब भी और आइंदा भी पहुँचाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी बर्लिन के सदर मंजूर अवान ने कहा, कश्मीरी अवाम 8 लाख काबिज भारतीय फोर्सेस के साथ हर गली कूचे में नबर्द आजमा हैं। इस्लामी तहरीक के अमीर खालिद महमूद ने कहा, कश्मीरी अवाम तकमील पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। आज हम उसकी याद में मना रहे हैं। कश्मीर में सैकड़ों हमारे बहन और भाइयों को तय किया जा चुका है, पैलेट गन के साथ ज़ख्मी करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उन अपने कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों को आज़ाद कराएंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से एक जान होकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मतीउल्लाह, 92 न्यूज़, बर्लिन। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसल के सामने भी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। मुजाहरे की क़यादत अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने की। शुरका का कहना था, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि वो मजालिम बंद कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। इंडियन कौंसल खाने के सामने आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया है, जो कि 5 फरवरी के लिए पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो मनाते हैं। और आज हम लोगों ने इसी सिलसिले में कश्मीर के नहत्ते मुसलमानों के लिए आज जो मुजाहरे का इनेकाद किया है कश्मीरी कम्युनिटी के साथ मिल के, आज हम लोग इंडियन एम्बेसी के सामने इसको मना रहे हैं, जिसमें भरपूर लोगों ने इस मुजाहरे में शिरकत करके इस मुजाहरे को कामयाब किया है। इस वक्त तक जो है ऑलमोस्ट 1.5 लाख कश्मीरी जो है वो शहीद हो चुके हैं, शहादत का रुतबा पा चुके हैं और 300 के लगभग जो है नौजवानों की जो नज़र है, उनकी जो बिनाई है, उससे उन्हें मारूम कर दिया गया है पैलेट गन्स की शॉट से। बावजूद इसके कश्मीरी जो है वो अपने हक पर जो है वो डटे हुए हैं और भारत की 7 लाख फौज का उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हम ये बावर कराते हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया को कि हम आज़ादी लेके रहेंगे और मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती करके हम उन्हें ये सलाम पेश करते हैं कि हम आपके हर मुश्किल की घड़ी में आपके साथ हैं। दुनिया भर में हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर और इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय आर्मी जो है उसके जो नापाक अज़ाइम है, घिनौना जो चेहरा है, उसका हम उसको बेनकाब करते रहते हैं। वहाँ पर लोगों को रेफरेंडम का मौका मिले जो 1947 से नहीं मिल रहा। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेहरू और यूनाइटेड नेशन 1948 में कहा था, कश्मीर लोगों के पास फैसला होना चाहिए कि वो किस मुल्क से रहना चाहते हैं, वही फैसला हम चाहते हैं अब। और कश्मीर को वही हक मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से बच्चों का मुस्तकबिल उनसे छीना जा रहा है और इंसानों, बूढ़ों, बच्चों, औरतों सब पर जुल्म हो रहा है। मुजाहरे के अख्ताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के नायब सदर चौधरी रहमत अली की जानिब से मेहमानों के लिए डिनर का खसूसी इंतजाम किया गया। शुरका ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की और मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं की। याराने जहाँ कश्मीर को कहते हैं जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। 92 न्यूज़ यूके में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने ब्रेडफर्ड में रुकन पार्लियामेंट नाज शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बरतानवी शहरियों को बहुत जल्द एंट्री पर वीज़ा सर्विस देने की और फीस में कमी की यकीन दहानी कराई है। तफसीलात वक़ार बाबर की इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मशीर जुल्फ़ी बुखारी इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। बरतानिया दौरे के दौरान सबसे पहले वो ब्रेडफर्ड पहुंचे, जहां उन्होंने बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान साहब का फोकस ये है कि देखें आप, अब खान साहब हर चीज़ एकदम तो नहीं कर सकते ना। अभी जो मगरमच्छ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पहले हम उनको ज़रा सही तरीके से डील करें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद पाकिस्तान से निकल के जो लोगों ने
जो बाहर पाकिस्तान है उनको भी। इस मौके पर रुकने बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह का कहना था कि इमरान खान और उनकी टीम ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। We have real hope in what the vision, you know, the election, the new Prime Minister and his cabinet have certainly inspired the world. And over to you to tell us your thoughts and how you're finding your role as a new minister. So yeah, over to you. उनका मजीद कहना था कि वो उम्मीद करती हैं कि इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वस्ती लंदन में स्वास यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान सोसाइटी ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी सेनेटर्स मुशाहिद हुसैन सैयद और अनवारुल हक काकड़ शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में खित्ते और आलमी मंजरनामे पर बातचीत भी की गई। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। वस्ती लंदन में सोएस यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान सोसाइटी ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालबात शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद CPAC, कश्मीर और अफगानिस्तान के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि CPAC के जरिए पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुद मुख्तारी की नई राहें निकलेंगी। There is a lobby in the West and certain parts of Asia, which I alluded to in my talk, which wants a new Cold War. They speak of a China threat. And they see fault lines. They see China emerging as a rising power, rivaling the US. The US National Security Strategy of 2018, please read it. They say Russia and China are a bigger threat than Al-Qaeda. इस मौके पर सदर चुनाई ग्रुप यूके अब्दुल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से CPAC के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियां दूर करने में मदद मिलेगी। A community which has come from the rest of the country and have settled there for almost 100 years, which is typically labelled, and they have got their own denominator which is not known in the rest of the country, known as settlers. They are a group of people with multiple linguistic backgrounds, that is Punjabi, Kashmiri, Saraiki, so on and so forth. सोएस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान सोसाइटी के सदर महानूर चौधरी ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अवाम को घरों से निकलना होगा। आखिर में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जबकि मुकर्रीन को इस मौके पर अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन में वालिदैन के एहतराम के मुतालिक एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सैयद हाशिम अल गिलानी सज्जादा नशीन दरबार गौसुल आज़म बगदाद शरीफ ने की। तकरीब में मुल्क भर से उलमा और मशाइख शरीक हुए। नात ख्वान हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाए अक़ीदत पेश किए। रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम साबरी। लंदन में वालिदैन के एहतराम के मौजू पर एक रूहानी महफिल सजाई गई, जिसकी सदारत शहजादा गौसुल वरा पीर सैयद हाशिम अल गिलानी सज्जादा नशीन बगदाद शरीफ ने फरमाई। पीर सैयद हाशिम अल गिलानी ने अपने खुतबा सदारत में फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको माँ बाप बहन भाइयों और हर चीज़ से मुकद्दम न हो जाऊँ। You will be not a complete mu'min and believer till when you love me more than yourself. Then Sayyidina Umar ibn al-Khattab, he looked to the face of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam and he swear to say, Wallahi ya Rasulullah, I love you more than myself and father and everything in this life. हज़रत पीर सैयद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ उन्होंने फरमाया कि जब वो बचपन में सफ़र पर रवाना हो रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सच बोलेंगे, और उनके सच की बदौलत अल्लाह ने चोरों और डाकुओं को वक्त का वली बना दिया। Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Mathalu ahli bayti kamathali safinati Nuh, man rakabaha faqad naja wa man tarakaha faqad gharaq." You say, Sayyidina Rasulullah, my family as a simple like the boat of the family of Sayyidina Rasulullah. Everybody have entered inside that boat, he will be with me in the Jannah in the judgment day. मेहमान ख़ुसूसी ने हाज़रीन को एक चार्ट के जरिए पीर सैयद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पूरा शजर नसब भी दिखाया, जो 18 निस्बतों से हजूर से जाकर मिलता है।
इस मौके पर रूहानी महफिल में दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि माँ बाप के एहतराम के मुतल्लिक बेशुमार आयत कुरानी और अहादीस मुबारक मौजूद हैं। जिसने खुलूस नियत से अपने वालिदैन की खिदमत की उसने दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह पाई। आज की गैदरिंग में उलमा, मशाइख और दीगर जो तशरीफ़ लाए हुए स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि नौजवान नस्ल को अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और वालिदैन की खिदमत में ही अज़मत है। और अगर वालिदैन को छोड़ दिया जाए, उनकी खिदमत ना की जाए, उनकी नाफरमानी की जाए तो यकीनन लोगों को राह रास्त नहीं मिल सकती। अल्लाह की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वालिदैन की खिदमत के हवाले से हैं। आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से था कि नौजवान नस्ल को इस तरफ लाया जाए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनका एहतराम करें, उनकी फरमाबरदारी करें। बरतानिया में वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है और यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके उन्हें माशरे का एक फ़र्द बनाया है, आज मैं समझता हूँ उस माँ के हवाले से मैसेज नहीं है, बल्कि हर उस वालिद और वालदा के हवाले से जो बरतानिया और यूरोप की वादियों में अपनी औलादों को न सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए काबिल फ़ख्र बनाते हैं, बल्कि माशरे का एक कामिल और मुफीद फ़र्द बनाकर यहाँ की यूरोप की वादियों में इस्लाम का सच्चा पैगाम पहुँचाते हैं, वो काबिल तहसीन है। Or raise your words or emotions to your mother. And alhamdulillah, we have the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that said that under the feet of the mother lies paradise and your father is the door of Jannah. Many companions became many companions and many awliya Allah, they serve their mothers, they love their mothers, and through the means of their mothers they reach high stations. सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि नबी की रसूल का सबसे जो पैगाम दुनिया में दिया गया अपने वालिदैन का अदब एहतराम करना। हज़रत वैसी करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो उन्होंने माँ बाप की खिदमत की अपनी वालदा साहबा की और उनका जो उनको अजर मिला, इस वक्त पूरी दुनिया में सब आप जानते हैं कि माँ बाप की खिदमत करने का इनाम क्या मिलता है। अल्लाह पाक हमें माँ बाप की अदब और उनकी इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। We are partner in this program and sharing this program to send the message about the parents and for the respect and for the dua and for the love of the hadith of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam when they said to the Abdullah ibn Mas'ud, if you want to be near with Allah subhanahu wa ta'ala, love him, you have to do first thing your prayer in the on time and to look after your parents, second thing, and third al-jihadu fi sabilillah. That is the meaning. If you look after your parents, it is bigger than al-jihadu fi sabilillah as the hadith of Sayyidina Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर अवैस बरादरान सैफ अली चिश्ती और रेहान कुरैशी ने अपने खूबसूरत अल्फाज और अंदाज में दरबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है कि अपने माँ बाप को उफ तक भी न कहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। पैगाम पाकिस्तान के मौजू पर महफिल क़िरात और नात का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली और हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से उस्मान भट्ट। जामिया मस्जिद हनफिया नूरानी टाउनशिप लाहौर में पैगाम पाकिस्तान के हवाले से महफिल सजाई गई। आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली ने अपनी दिलकश आवाज में कलाम पाक पेश किया। हाफिज मरगूब अहमद हमदानी ने खुसूसी शिरकत की और हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। पैगाम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए कारी सैयद सदाकत अली ने कहा, कुरानी तालीमात पर अमल करने से ही अमन कायम हो सकता है। कुरान का पाकिस्तान के साथ बड़ा मजबूत ताल्लुक है, इसलिए ये जो फतवा पैगाम पाकिस्तान जो है वो प्रमोट हो रहा है और उसको एंडोर्स किया है तमाम दुनिया के मोर देन 5000 स्कॉलर्स ने और मुफ्तियान हज़रात ने उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाफिज मरगूब अहमद हमदानी का कहना था कि अल्लाह के यहाँ नात की बहुत कबूलियत है। अल्लाह का जिक्र भी इस महफिलों में होता है, हुजूर पाक का भी महफिलों में जो नात पढ़ी जाती है, ये भी अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई। इख्तिताम पर हाज़रीन ने दुरूद पाक पढ़ा। कैमरामैन शेर खान के साथ उस्मान भट्ट, 92 न्यूज़, लाहौर। 92 न्यूज़ यूके में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
پی ٹی آئی مڈل ایسٹ کے مرکزی رہنما میاں اویس انجم کے اعزاز میں متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف یو اے ای عجمان کے صدر چودھری عبید اللہ ڈوئیاں نے پارٹی کے سینئر رہنما و بانی ممبر مڈل ایسٹ میاں اویس انجم کے اعزاز میں ایک استقبالیہ اور عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب سے نائب صدر چودھری عبدالرزاق، جنرل سیکرٹری چودھری نوید ارشد چوہان، انفارمیشن سیکرٹری تحسین شہباز اور چودھری یاسین اختر بوکن سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور کہا مہمان خصوصی میاں اویس انجم پارٹی کا اہم سرمایہ ہیں۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی یو اے ای عجمان کے صدر چودھری عبید اللہ ڈوئیاں نے کہا کہ ہم اپنے قائد عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، امید ہے جلد نئے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ جب بھی ہم ان کے خلاف آئیں گے، ان کا احتساب ہوگا تو یہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ خان صاحب کا ایک سلوگن تھا، ہر جو بھی آپ نے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اسی میں ہمارا تھا، ہمیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہم اس سے اور مضبوط ہوں گے۔ خان صاحب جو پالیسیاں لا رہے ہیں، مین ہماری جو ہمارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہیلتھ کا ہے، صحت کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، انصاف کا ہے، وہ انشاءاللہ مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جو ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ غریبوں سے لے، خان صاحب غریبوں کی نبض جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، وہ ڈیلیور بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مجبوری تھی ان دو حکومتوں نے جس طرح ہمارے ملک کو لوٹا تھا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس جاتے، لیکن خان صاحب نے آئی ایم ایف سے بہتر سمجھا کہ ہم اپنے مسلم ممالک کے پاس جائیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں۔ وہ اسی سلسلے میں خان صاحب چائنا گئے، اسی سلسلے میں ملیشیا گئے، اسی طریقے سے ترکی گئے، عرب امارات میں، سعودی عربیہ میں، کویت میں۔ جو ہمیں یہ سب پتہ ہے کیا، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں لیڈرشپ پہ۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ڈیلیور کر سکتے ہیں، ایک ایماندار آدمی ہے، تو اسی لیے یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ملک یہیں پہ تھے، یہ لیڈر بھی یہیں پہ تھے، لیکن کوئی ان پہ اعتماد نہیں کرتا۔ حکمران جماعت کے رہنما میاں اویس انجم نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میاں نواز شریف اور زرداری اپنے اصل مقام کو پہنچ چکے، اب عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینا ہوگی اور اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہوگا۔ پاکستان کے مسائل جو ہیں ان میں غربت ہے، جہالت ہے، یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے کنٹری میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ 2.5 کروڑ بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو میں تو اس حق میں ہوں، یہ پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس نے اس پاکستان کو لوٹا ہے، ان چوروں اور لٹیروں سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لینی چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان کے اوپر ضائع کرنا چاہیے۔ اور یہ ویسے ہی جو ہیں اپنی ایج کے اس حصے میں ہیں، ان کی سزا سب سے بڑی یہی ہے کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت جو انہوں نے بڑی محنت کر کے اتنے سالوں سے اس قوم کو چونا لگا کے اکٹھی کی ہے، وہ دولت واپس لیں، وہ اپنے لوگوں پہ خرچیں، انسانوں پہ خرچیں، انسانوں کی بلائی بقا کے اوپر خرچیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے غریب عوام کی خوشحالی، پاکستان کی پراسپیرٹی پہ خرچیں۔ تقریب میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آخر میں میاں اویس انجم نے عجمان زون کے عہدیداران شیخ عاطف راشد، سردار عاشق نواز، محسن لیاقت، ملک مزمل اعوان، امیش خان پٹینی سمیت تمام ریاستوں سے آنے والے پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز اور ایکسس کیجیے ہماری ویب سائٹ 92newsSD.tv۔